Brothers and sisters, this is about the new covenant life, भाइयों बहनों, ये नई वाचा के जीवन के बारे में है and it's part 2. Our adequacy is from God. और ये भाग दूसरा है। हमारी जो योग्यता है वो परमेश्वर के द्वारा आती है। Last time we saw about the God's law being written in our hearts. पिछली बार हमने देखा था कि परमेश्वर का जो नियम है वो हमारे हृदयों में लिखा हुआ है। So brothers and sisters, how many of you remember the references of the old covenant and the new covenant? भाइयों बहनों, आप में से कितने लोग उन वचनों को जो कि पुराने नियम और नए नियम में है वो याद रखे हैं अब तक? Can you raise your hands? क्या आप अपने हाथों को ऊपर उठा सकते हैं? Okay, I see one hand. Any more? We have spoken about it yesterday and we have repeatedly speaking so many times. हम पिछली बार भी इसके बारे में बात कर रहे थे और कहीं बार लगातार बात कर रहे Let me हैं। see all the hands who know it. Just raise your hands. Okay. जितने भी लोग हैं वो अपने अपने All hands हाथों are को going उठाएंगे। up. Okay. Okay. So this is it's good, but not that good in that sense. Okay. Okay. So one of you, okay, let's Sunanda say which what is the old covenant? What is the reference? बहन सोनंदा कहें कि पुराने नियम का जो वचन था वो कहाँ पे था? Don't worry even if you have made any mistake. Okay. This is not a this is just to encourage you to know it. अगर आपने कोई गलती की, Exodus 19 Right? and New Testament. No, Exodus Hebrew 19. 8. Which verses? Exodus 19 verse 5 onwards, I think. 5 and 6. You're right. Let's give her. Yeah, good. बहन सोनंदा के लिए तालियां बजाएं। New Testament is Hebrew 8. Yeah, I'll just ask somebody else. Now you already told half. So, New Testament. How many of you know the New Testament, the covenant which we are talking about? How many have raised your hands? आप में से कितने लोगों को नए वाचा के बारे में जो नए नियम में उसके बारे में पता है? अपने हाथ ऊपर करें। So I'll be repeating this till almost all hands will go up now. Okay? तो ये मैं लगातार जब तक सबके हाथ ऊपर ना हो जाए तब तक ये लगातार बोलता ही रहूंगा, Because only when you know what the covenant is, you will appreciate it. क्योंकि जब तक आप इस वाचा को जानेंगे तभी उसको सराहेंगे। Otherwise, it will be a message and it's a. Sometimes you'll get fed up of it also. और नहीं तो क्या होगा, ये एक पुराने संदेश के समान हो जाएगा और कहीं बार आप इससे उब भी सकते हैं। Okay. Somebody now from among the brothers who can give the reference of the new covenant. What is the new covenant? In which भाइयों में से कोई एक जन जो नए नियम में वाचा के बारे में है, कहाँ पे वचन बताएं? Okay, Ashish. Absolutely, very good. Okay. So, brothers and sisters, go home today, examine these, write it down, write the Old Covenant, Exodus chapter 19, verse 5 and 6, and write the New Covenant, Hebrews chapter 8, verse 10 to 12. Examine both. The Word of God says it's a better covenant, and the Old Covenant is now obsolete. भाइयों बहनों, तो आप घर में जाके ये जो वचन है उस पर चिंता करें, उसको मनन करें और लिख के रखें अपनी किताब में कि जो पुराने नियम में जो वाचा के बारे में लिखा हुआ है वो है निर्गमन का किताब 19वां अध्याय उसके 7 और 8 में, और नए नियम में जो वचन है वो है इब्रानियों 8 उसका 10 to 12. 10 से 12 तक। Brothers and sisters, this is the covenant which Jesus has made. He has come to give his life तो for भाइयों this covenant. बहनों, ये वाचा जो है हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने दी है हमारे जीवन के लिए, And to give us this new life through his covenant, he has given it. और उसके जीवन के द्वारा ये एक नया जीवन देने के लिए ये जो नया वाचा है प्रभु ने हमें दिया है। So, unless we know it and unless we get a revelation of it, it will not make much difference in our life. जब तक हमें इसे नहीं जान पाएंगे, जब तक इसका प्रकाश हमारे जीवन में नहीं मिलेगा, तब तक इसमें कोई हमारे जीवन में कोई बदलावट नहीं होगा। So, Hebrews 8, we will just look at that verse 10 and 11. हम देखेंगे इब्रानियों 8 उसके 10 और 11 में, I will put my laws into their minds, and then it says, I will write them upon their hearts, and I will, now the next one is, I will be their God, and they shall be my people,
And they shall not teach everyone his fellow citizen and everyone his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me from the least to the greatest of them. वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। So last time we saw about I will put my laws into their minds and I will write them upon their hearts. पिछली बार हमने देखा था कि मैं उनके हृदयों में मेरे जो व्यवस्था है वो लिखूंगा और उनके मन में मैं इसे रखूंगा। How it was different from the old covenant which was written on tablets of stone. अभी ये जो पुराना वाचा जो कि पत्थर की पट्टियों पे लिखे थे उससे अलग है। Now the lawgiver is in our heart. अब जो व्यवस्था है वो हमारे हृदयों में दिया हुआ है। He works through our life now. ये हमारे जीवन के द्वारा अब कार्य करती है। So now we see the next part of what God says, and I will be their God and they shall be my people. अभी हम इसका दूसरा भाग देखेंगे जहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि अब मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। God is saying that I will be their God. I will take care of them. परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, मैं उनका ख्याल रखूंगा And they shall be my people. और वो मेरे जन होंगे। In the Old Testament times, it was only Israel, the country of Israel, or the descendants of Abraham, who was his people. और पुराने नियम में हम देखते हैं जो कि अब्राहम के संतान थे, जो इज़राइल की संतान थे, वही परमेश्वर के जन थे। But now all those who have faith in Jesus Christ are his people. अब जितने भी लोगों का विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है वो सभी लोग उसके जन हैं। It's a great privilege to be the children of God. ये बहुत ही सौभाग्य की बात है परमेश्वर का संतान होना। And then it says further, it says, and they shall not teach everyone his fellow citizen and everyone his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me from the least to the greatest. और आगे कहा गया है और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। So this is a wonderful thing that in this Christian life, that all of us can know God personally. तो ये बहुत ही अद्भुत बात है ये मसीही जीवन का कि हम में से हर एक जन जो है परमेश्वर को जान सकते हैं। We don't need an elder to know God. हमें कोई प्राचीन की जरूरत नहीं है परमेश्वर को जानने के लिए। Like in the old covenant, there were prophets and there were people whom the people would go to and find out what is God's will. जैसे कि पुराने करार में या तो फिर वाचा में हम देखते थे परमेश्वर के जो याजक वगैरह रहते थे जो जाके परमेश्वर की इच्छा क्या है वो खोज के लाते थे। Now we all have got a potential to know God more and more. परंतु अब हम सभियों के पास एक मौका है कि हम परमेश्वर को और ज्यादा से ज्यादा जान सकते हैं। But the thing is that some have a greater hunger. पर बात ये है कि कुछ लोगों के पास ज्यादा भूख होती है। Like the Apostle Paul, जैसे कि प्रेरित पौलुस है, who heard the voice of Jesus, who had such a conversion experience, but he had thirsted to know more about God. जिसने प्रभु यीशु मसीह को जाना और उसके अंदर इतनी भूख लगी कि वो प्रभु यीशु के बारे में और ज्यादा जाने। Brothers and sisters, from the time that you come to know Christ, you should have a thirst for God. भाइयों बहनों, जब से आप प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे हैं तब से आपके अंदर एक भूख और प्यास होनी चाहिए। 20 years later, you will be a different person. 20 साल के बाद आप बिल्कुल एक परिवर्तित जन होंगे। If you don't have thirst for God, you will be almost the same. अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्यास नहीं है तो आप तो ऐसे ही रह जाएंगे। I challenge you all today, brothers and sisters, to have a thirst for God. मैं सभियों को आज भाइयों बहनों चुनौती देता हूँ कि आप परमेश्वर के लिए एक प्यास लाइए मन में। That thirst will make you to search here and there and hunger for God. और वो जो प्यास है आपको यहाँ वहाँ खोजने में विवश कर देगी और आपके अंदर एक भूख होगा। You will not be satisfied with anything else but knowing God. आप जो है ऐसे ही बैठने में संतुष्ट नहीं होंगे परंतु आप परमेश्वर को और जानना चाहेंगे। And this privilege is open for all of us और through the new covenant. और ये जो सौभाग्य है हम सभियों के लिए खुला हुआ है नए वाचा के द्वारा। It's a great thing to know God more and more. और परमेश्वर को जानना जो है ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ी एक बात है। Okay, and so now we'll talk a little bit about having fellowship with God. अब हम परमेश्वर के साथ संगति के बारे में देखेंगे। As it says, they shall all know me. जैसे कि लिखा हुआ है कि वो सारे लोग मुझे जानेंगे। Okay,
So 2 Corinthians chapter 3 verse 4, दूसरा कुरिन्थियों तीसरा अध्याय उसका 4था वचन, it's a wonderful verse. अद्भुत वचन है, अच्छा वचन है। 2 Corinthians chapter 3 verse 4 says, and such confidence we have through Christ toward God. यहाँ पे दूसरा कुरिन्थियों तीसरा अध्याय उसके 14वें वचन में लिखा हुआ है, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। The apostle Paul is saying, and such confidence we have through Christ toward God. यहाँ पे प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसे ही भरोसा रखते हैं। See, to approach God, the living God, is not something which anybody can do. जो जीवित परमेश्वर के पास जाना जो है किसी कोई भी ऐसा नहीं कर सकता आसानी से, Because God is light, in Him there is no darkness. और क्योंकि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं। So to be in His presence itself is the greatest privilege. और परमेश्वर की उपस्थिति में होना ही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। And then to have confidence before Him. और फिर उसके सामने आकर उस पर ज्यादा भरोसा रखना। See, we can go to God and go like afraid of, even though we know Jesus, we are worried about some things that that we may not be good enough, or there may be some condemnation, or which condemnation we should not entertain, because Christ does not give us condemnation. और जो हम जब भी प्रभु के पास जाते हैं, कभी कभी भयभीत होके जाते हैं, हमारे मन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं, हमारे जो पाप होते हैं उसके अपराधों का एहसास हमें होता है, तो परमेश्वर यीशु मसीह जो है किसी पर दोष नहीं लगाता है। Let's take for example Kushi or Asher, who the small children of their parents. उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं ऐशर और खुशी को, जो कि अपने बच्चों के अपने माता पिता के पास जाते हों। I've just taken 2 names, that's all. Sorry? I've taken just 2 names, that's all. मैंने सिर्फ 2 ही नाम लिए हैं। When they go to their parents, they are confident. जब वो अपने माता पिता के पास जाते हैं, पूरे भरोसे के साथ जाते हैं। But children of God, including me, could not be confident towards God. There was a time when I was not so confident. पर हम जो परमेश्वर के संतान हैं, ऐसे कई अवसर हमारे पास होते हैं कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हिम्मत बांध के नहीं जाते। So how do we go to God confidently? तो हम परमेश्वर के सामने हियाव बांधकर हिम्मत के साथ कैसे जा सकते हैं? Maybe we kneel down. हम हो सकता है घुटने टिकाएं, And that's it. We are in His presence. उतना ही हम उसकी उपस्थिति में होते हैं। Just like these children go to their parents, we are confidently before Him. जैसे ये बच्चे अपने माता पिता के सामने जाते हैं, वैसे ही हम हिम्मत बांधकर भरोसे के साथ परमेश्वर के सामने जाते हैं। And just like the parents love and cherish their children, our Heavenly Father cherishes us. जैसे ही ये माता पिता अपने बच्चों को जो है प्रेम करते हैं, सराहते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी हमें सराहते हैं। Yeah, that's the way Jesus and the Heavenly Father cherishes us. ऐसे ही यीशु मसीह परमेश्वर पिता परमेश्वर हमें सराहते हैं। So we come to Him boldly and just be in His presence. और हम परमेश्वर के सामने हिम्मत बांध कर आते हैं और सिर्फ उसकी उपस्थिति में रह जाते Brothers and हैं। sisters, this is the thing which changes our life. भाइयों बहनों, यही वो चीज है जो हमारे जीवन को बदल देती The है। presence of God, being in the presence of God and spending time with Him is the one which will change our life. और परमेश्वर की उपस्थिति में होना और उसके साथ संगति रखना जो बात है, वो हमारे जीवन को बदलता है। There we pour our heart वहाँ पे अपने मन को हम उंडेलते हैं and we express different things in our life to Him. और हमारे जीवन के जो अलग अलग बातें हैं उसका हम परमेश्वर के सामने बोलते हैं। And we say, Lord Jesus, I want to be like you. और हम कहते हैं कि प्रभु यीशु, मैं तुम्हारे आपके जैसा बनना चाहता हूँ। God hears all these things परमेश्वर ये सारी बातें सुनते हैं and He's happy and He will be answering it. और वो परमेश्वर खुश होंगे और उसका उत्तर भी वो देंगे। That's the way our life changes. ऐसे ही हमारा जीवन जो है बदलता है। Not by doing some activity or not by learning the Bible. कोई कुछ कार्य करने के द्वारा या तो फिर बाइबल का अध्ययन करने द्वारा नहीं, It is by knowing God, ये सिर्फ परमेश्वर को जानने के द्वारा है। where He speaks to us, not only during the prayer time, but throughout the day. सिर्फ प्रार्थना के समय ही नहीं, परंतु दिन भर वो हमसे बातें करते हैं। Throughout the day, we are talking to Him and committing our lives to Him. दिन भर हम प्रभु से बातें करते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं। Ephesians 3:12 says, "In whom we have boldness and confident access through faith in Him." एफेसियों की किताब 3 अध्याय उसके 12वें वचन में लिखा हुआ है, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। So,
the reason that we have access to God is because Jesus made that way. और परमेश्वर के पास हम इसलिए जा सकते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मार्ग बना दिया है। We know that in the old covenant time it was not possible to go to the most holy place. और हम जानते हैं कि पुराने वाचा के समय में जो है सबसे अति पवित्र स्थान में जाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। Hebrews 10 verse 19 to 20. इब्रानियों 10 उसका 19 से 20। Since therefore, brethren, we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, by a new and living way which he inaugurated for us through the veil that is his flesh. सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। And Hebrews 6 verses 19 to 20. इब्रानियों 6 19 20। This hope we have as an anchor of the soul, a hope both sure and steadfast, and which enters within the veil, where Jesus has entered as a forerunner for us, having become a high priest forever, according to the order of Melchizedek. वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे की रीति पर प्रवेश हुआ है। So this fellowship with God, the apostle John said in 1 John chapter 1 verse 3, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 3 वचन में प्रेरित यूहन्ना परमेश्वर की संगति के बारे में कहते हैं। it says, and indeed our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ. और सच में ही हमारी जो सहभागिता है परमेश्वर के साथ उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। So God made a wonderful thing through Jesus Christ. He made the way to go to God. और परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा एक मार्ग प्रभु यीशु के द्वारा बनाया है कि हम परमेश्वर के पास सीधा जा सके। Why do we have boldness हमारे अंदर इतनी हिम्मत क्यों है to go before a living God, एक जीवित परमेश्वर के सामने जाने के holy लिए, God? जो Holy. पवित्र परमेश्वर है। You know, even before an angel, people will fall down. एक स्वर्गदूत के सामने भी लोग गिरते हैं सामने। People in heaven, they are radiant. You know, they're very powerful. और जो स्वर्ग के लोग हैं वो बहुत ही प्रकाशमय है, बहुत ही सामर्थी हैं। They are pure and they are powerful. वो बहुत ही पवित्र है, सामर्थी हैं। So that's what we read in the Revelation also. यही हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं। But God, what He did was, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया? He gave us the gift of righteousness. परमेश्वर ने हमें धार्मिकता का वरदान दिया। When we have faith in Jesus Christ, He gives us the gift of righteousness. जब हमारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास बन जाता है तब धार्मिकता का जो वरदान है वो परमेश्वर हमें The देते very हैं, righteousness of Christ, the very righteousness of Christ, जो कि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है, He gives it to us. वो हमें वो देते हैं। God's plan, it is so wonderful. परमेश्वर की जो योजना है बहुत ही अद्भुत है। For all His children who repented of their sins and put faith in Christ, जितने भी परमेश्वर के संतान जिन्होंने पश्चाताप कर कर परमेश्वर पर भरोसा रखा है, He has given them the gift of righteousness. उन सभी को परमेश्वर ने धार्मिकता का वरदान दिया है। That's why we have boldness इसीलिए हमारे अंदर हिम्मत है to face Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता के सामने जाने की, because He considers us as His beloved. क्योंकि वो हमें अपने प्रिय समझते हैं। How many of you really know that He considers us as His beloved? आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर हमें अपने प्रिय समझते हैं? How many of you can confidently say, I am God's beloved? आप में से कितने लोग ये भरोसे के साथ कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का बहुत ही प्रिय हूँ? Say that. You must say that. Keep on saying that, and because it's God's word. और आपको ये कहना ही है और जब तक लगातार आप कहते रहिए क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है And that He rejoices over us. और वो हमारे ऊपर बहुत ही आनंदित होते हैं। Zephaniah 3:17. जफन्याह की किताब 3 उसका 17 वचन, He is delighted with us. वो हमारे साथ बहुत ही आनंदित होते हैं। Okay? These are the things which changes our life. यही वो चीजें हैं जो हमारे जीवन को बदल देता है। Okay? These are the things which makes us our lives changed. ये वो चीजें हैं जो हमारे जीवन में बदलावट लेकर आती है। Brothers and sisters, but there is one thing that in the Christian life, if our Christian life is to be go on the way God wants us, तो भाइयों बहनों एक चीज है जहाँ पे परमेश्वर जैसे चाहते हैं वैसे हमारे मसीही जीवन को आगे ले जाना, then Christ should be supreme. फिर मसीह हमारे जीवन में प्रथम स्थान पर होना चाहिए। If we think Christ is there and we have something else on the side, अगर हम देखें सोचेंगे ऐसे कि प्रभु यीशु मसीह तो है परंतु उसके बाजू में और भी कुछ है, all what I'm saying will not register much.
मैं जितना भी कह रहा हूँ वो सारी चीजें आपके मन में नहीं ठहरेंगी. For all those for whom Christ is supreme, when we can consider our life and say, we can see who is the first in our life. और जितने भी लोगों के अंदर प्रभु यीशु मसीह प्रथम स्थान पे है, हम अपने जीवन को देखकर ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में प्रथम स्थान पर कौन है. Make a list of the things that we really treasure, हमारे जीवन में जितनी भी चीजों को हम ज्यादा मानते हैं उन चीजों की एक पट्टी बनाइए. and can we put Jesus on the top? और क्या हम वहाँ पे यीशु को सबसे प्रथम स्थान पर रख सकते हैं. It's only between us and God. ये सिर्फ हमारे और परमेश्वर के बीच में होगा. If Jesus is on top, अगर यीशु मसीह उस ऊपर के स्थान पर है then this new covenant life will be fantastic. तो फिर ये नए वाचा का जो जीवन है बहुत ही अद्भुत होगा. As the Apostle John says, his commandments are not burdensome. और जैसे कि प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि उसकी जितनी भी आज्ञा है वो इतने भारी नहीं है. If it is not first, his commandments can be burdensome to us. अगर वो हमारे जीवन में प्रथम स्थान पे नहीं है तो उसकी जो ये आज्ञा है वो हमारे लिए भारी हो So सकती है. finally, what I'm saying is, for those who want to keep Christ first, और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए जो कि प्रभु यीशु मसीह को पहले स्थान पर रखना and चाहते हैं. brothers, sisters, we are all children of God. We should keep Christ first. और भाइयों बहनों हम सभी लोग परमेश्वर के संतान हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह को ही सबसे प्रथम स्थान पे रखना होगा. Above our loved ones, हम जिनसे प्रेम करते हैं उनसे भी आगे, above any material thing, इस पृथ्वी की जितनी भी चीजें हैं उससे आगे Jesus should be first. यीशु को सबसे पहले स्थान पर होना है. Yeah. So that's the way when then we'll have a wonderful time of fellowship with God. ये ऐसा ही परमेश्वर के साथ हमारी जो संगति होगी बहुत ही अद्भुत होगी. And then in this life of ours, to live this life, we are not adequate. और ये जो जीवन है इसे जीने के लिए हम इतने पर्याप्त नहीं हैं. This Christian life is a very supernatural life. ये जो मसीही जीवन है वो एक ऐसा ही जीवन है. We are going against the tide. वो जो है समय के विरुद्ध में जाता है. We are going against the tide. जो लहर है उसके दूसरी ओर जाता है. The world is going in one way. दुनिया जो है वो एक मार्ग की ओर जा रहा है We आगे. are going in the opposite direction. हम जो है उसके दूसरी दिशा की ओर जा रहे So हैं. it will not be easy. तो ये आसान नहीं होगा. But this life, we are not adequate to live this life. पर ये जीवन जीने के लिए हम पर्याप्त नहीं हैं. That's what the word of God says. यही परमेश्वर का वचन कहता है हमसे. Let us read in 2 Corinthians chapter 3 verse 5 to 6. दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय उसका 5 और 6 वचन हम पढ़ेंगे. Not that we are adequate in ourselves to consider anything as coming from ourselves, but our adequacy is from God. यही नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है. So this new covenant life, we are not adequate to live. तो ये नई वाचा का जो जीवन है उससे जीने के लिए हम इतने योग्य नहीं हैं. The standards are so high, उसके स्तर इतने ऊंचे हैं so we are not adequate for that. तो हम इसके लिए योग्य नहीं हैं. Like in the law, even the law which is not that sort of high standard, पर जैसे कि व्यवस्था हम देखते हैं इतने ऊंचे स्थान का नहीं था वो, they could not keep it. फिर भी वो उसका पालन नहीं कर पाए. Similarly, the new covenant, we cannot keep it. ऐसे ही नया वाचा भी हम उसको नहीं पाल We are not सकते. adequate. हम इसके योग्य नहीं हैं. Okay, Jesus said, it was written, you should not commit adultery. But I say to you, if you look at a woman with lust, you have committed adultery. और यीशु मसीह ने कहा कि पुराने वाचा में लिखा हुआ है कि तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है, पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ अगर तुम किसी को गलत नजर से देखते हो तो वो व्यभिचार है. So that standard is so high. तो स्तर जो है बहुत ऊंचा हो जाता And है. we are not adequate for that. वो हम इसके लिए योग्य नहीं हैं. But Bible doesn't say leave it there. But our adequacy is from God. पर बाइबल हमसे कहता है कि वहीं पे हमें रहना नहीं है, परंतु हमारी जो योग्यता है वो परमेश्वर की ओर से आती It's a है. wonderful thing that our adequacy comes from God. बहुत ही अद्भुत बात है कि हमारी योग्यता परमेश्वर की तरफ से आती है. And the next verse says, who also made us adequate. Now he has made us adequate as servants of the new covenant, not of the letter but of the spirit. For the letter kills, but the spirit gives life. और छठे वचन में जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है. So God has made us adequate. God has given us everything that is needed for life and godliness. तो हमें परमेश्वर योग्य बनाने के लिए एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए जो भी चाहिए वो परमेश्वर हमें देते हैं. But it is not of the letter but of the spirit.
पर ये कोई शब्द के द्वारा नहीं परंतु आत्मा के द्वारा। What is the meaning of that? उसका अर्थ क्या है? That when we read the New Testament, जब हम नए वाचा को पढ़ते हैं which is God's word, जो कि परमेश्वर का वचन है, we read so many things. You know, it says about not having bitterness, हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं जैसे कि कड़वाहट नहीं रखना, not having hate, और नफरत नहीं रखना, okay, and not speaking careless words, और बेकार के निकम्मे शब्द ना कहना। okay. All there are so many things. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। Now to be in the letter means you take that and think, okay, now it's written, I should not have bitterness. और शब्द का अर्थ ये है कि हम इस शब्द को लेते हैं और सोचते हैं कि अभी मेरे अंदर कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, I should not have hate. मेरे अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए। And then now a person is coming, but I have hate inside. और एक व्यक्ति मेरे सामने आ रहा है और मेरे हृदय में नफरत है उसके लिए। Sometimes we don't love we don't naturally like all people. आम तौर पे ऐसे होता है कि हम सभी लोगों को एक साथ पसंद नहीं करते हैं, Some people we don't naturally like. और कुछ लोगों को हम स्वाभाविक रूप से ही पसंद नहीं करते हैं, And because of that, we don't behave well with them. और इसी के कारण उनके साथ हम सही बर्ताव नहीं रखते हैं। That is not Christ-like. ये तो मसीह जैसा नहीं है, That has to change. उसे बदलना होगा। So naturally we may have some hatred towards somebody. स्वाभाविक रूप से ही हमारे अंदर किसी के प्रति नफरत हो सकती है। But you hear Brother Matthew preaching or Brother Kiran or Brother Joseph preaching, you should not have hate. और हम सुनते हैं कि भाई मैथ्यू और भाई किरण या तो फिर भाई जोसेफ प्रचार कर रहे हैं कि आपके हृदय में नफरत नहीं होनी चाहिए। Or we read in the Word of God that it should not have hate. और हम या तो फिर परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि हमारे अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए। That is the letter तो ये एक शब्द है, that will kill. वो मारता है। Because we are not adequate, it will kill us. अगर क्यों हम योग्य नहीं हैं तो वो हमें मार डालेगा। But the Spirit gives life. परंतु जो आत्मा है वो जीवन देता We है। have to look to the Spirit. हमें आत्मा की ओर देखना है। Lord, I have hatred. प्रभु मेरे अंदर नफरत है, I want to be like Jesus. मैं यीशु के समान बनना चाहता हूँ। Then the Spirit takes over. फिर आत्मा उसके ऊपर हावी होता है, And the Spirit transforms us. और फिर जो आत्मा जो है वो प्रत्युत्तर देता है। The letter kills, but the Spirit gives life. शब्द जो है वो मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। That is the new covenant. ये नए वाचा है, The old covenant was a letter. और जो पुरानी वाचा थी वो शब्द था। The law was good and holy, but the letter was causing them to be not keep the law. और जो व्यवस्था जो था वो पवित्र था, परंतु जो शब्द है उसके द्वारा वो उनको जो है वो जीने को उनको जो योग्य है वो नहीं बना रहा था। What the Bible says that the law was given to bring the knowledge of sin. और व्यवस्था परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था दिया गया था ताकि उनको पाप की जानकारी हो सके। The new covenant ministry is to not to give the knowledge of sin. परंतु नए वाचा को जो सेवा है वो पाप की जानकारी देने के लिए नहीं है। I can sit here and list some new type of sins. और मैं यहाँ पे बैठ के एक लिस्ट बना सकता हूँ अलग अलग नए तरीके के पाप के बारे में। That is not what is the new covenant. ये नई वाचा नहीं है। New covenant ministry is a ministry of righteousness. We'll see that later. और जो नए वाचा का जो सेवकाई है वो धार्मिकता का सेवकाई है, हम इसके बारे में बाद में देखेंगे। And the law is not of faith. और जो व्यवस्था है वो विश्वास के द्वारा नहीं है। When we go by the letter, we will not go by faith. We will think how we should overcome it. और जब हम शब्द के द्वारा जाएंगे तो हम विश्वास के द्वारा नहीं जाएंगे, हम देखेंगे कि हम अपने आप से कैसे उसके ऊपर जय पा सकते हैं। So the law is not of faith, but we need faith. और जो व्यवस्था है वो विश्वास के द्वारा नहीं है, तो हमें विश्वास की जरूरत है। Now, there's a wonderful verse in Romans chapter 2, verse 29. रोमियो दूसरा उसके 29वें वचन में एक अद्भुत सा वचन है। It says, but he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that which is of the heart, by the Spirit, not by the letter, and his praise is not from men but from God. यहाँ पे पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख है। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। So the Jews had circumcision. यहूदियों का खतना हुआ करता था। Circumcision means cutting off of the flesh. और खतना का अर्थ है कि जो चमड़ा है उसे काट देना, That is circumcision. वही खतना है। But here it says, the one who is a real Jew is one who is inwardly, not outwardly. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सत्य यहूदी वही है जो कि बाहरी रूप से नहीं है परंतु अंदरूनी रूप से है। And circumcision is that which is of the heart.
और खतना वो है जो कि हृदय का है। The new covenant, the circumcision is of the heart. और नए वाचा का जो खतना है वो हृदय का खतना Old है। covenant, the circumcision was of the flesh. और पुराने वाचा में हम देखते हैं जो खतना होता था वो हमारे चमड़े का होता था। Now here it is the circumcision of the heart. पर यहाँ पे हम देखते हैं कि हृदय की खतना है। Who does it? वो कौन करता है? Not by human, not we don't do it, by the Spirit. वो कोई मनुष्य के द्वारा नहीं, आत्मा के द्वारा। And it says not by the letter, और कहा गया है लेख के द्वारा नहीं, by the Spirit. आत्मा के द्वारा। The letter is that, okay, I should not hate, और शब्द ये है कि मुझे नफरत नहीं करनी but है, I am having hate. पर मेरे अंदर नफरत है। How do I overcome it? मैं इसके ऊपर कैसे जय पा सकता हूँ? That is the letter. यही शब्द है। But the Spirit, परंतु आत्मा, the Spirit, when we are going to hate somebody, the Spirit will nudge us and says, He will show us Christ. और जब हम किसी पर जो है नफरत करने जाते हैं तो आत्मा हमें रोकता है और कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें यीशु के समान बनना है। So, and it says, and His praise is not from men but from God. और यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से है। Brothers and sisters, when we come to the place where our praise, we depend on God's praise and not man's praise, we have come to the new covenant life. भाइयों बहनों, जब हम इस स्थान पे आते हैं जहाँ पे हम मनुष्यों की प्रशंसा नहीं चाहते हैं परंतु परमेश्वर की ओर से प्रशंसा चाहते हैं, तो हम एक नए वाचा के जीवन में आ चुके हैं। Most of the people depend on the praise of men. अधिकतर लोग जो है मनुष्यों की प्रशंसा पर निर्भर होते हैं। I am not being appreciated. I am not. Nobody is considering me. कोई मुझे सराह रहा नहीं है, कोई मेरा ध्यान नहीं दे रहा। His praise is not from men but of God. उसकी जो प्रशंसा है वो मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से है। Come to that life, brothers and sisters. भाइयों बहनों, वो एक जीवन की ओर आप आइए। That's the new covenant life. यही नए वाचा का एक जीवन है। So we'll end here today. May God help us to have fellowship with Him. हम यहाँ पे ही खत्म करेंगे आज के लिए। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उसके साथ संगति में हमेशा बने रहें। God desires each one of us. परमेश्वर हम सभियों को चाहते हैं। I want to tell each one of you that you are beloved of God. आप कहिए कि एक दूसरे से कह रही है कि आप परमेश्वर के बहुत ही प्रिय हो And God delights and rejoices in you. और परमेश्वर आप में आनंदित और मग्न होते हैं। You may not feel it, आपको इसका एहसास नहीं होगा, but if you believe God's word, you will believe that. अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो आप इस बात पर भी विश्वास करेंगे। Go to Him and learn to be confident before Him. और परमेश्वर के सामने जाइए और उसके परमेश्वर के सामने हिम्मत बांधकर जाना सीखिए। Spend time with Him. That will change our life. परमेश्वर के साथ समय बिताइए तो ये आपके जीवन को बदल देगा। And let us depend on the Spirit and not on the letter. हम परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर रहें, ना कि शब्द पर।